السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک دل دہلا دینے والا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش کیوں ہوئی۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا۔ چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم، قربان جاؤں، ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے، اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک هم الدرجات العلی، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا،
शिरक के नेड़े ना गया, कुफर के करीब ना गया। वमन यातिही मुमिनन, जो आदमी ईमानदार बन गया, अल्लाह के नजदीक ही हो गया, कुर्ब वाला बन गया, परवरदिगार आलम ने जिसको अपना बना लिया, फरमाया फउलाइका हुमुद्दरजातुल उला, अल्लाह के नजदीक उनकी दर्जात बुलंद हो जाया करते हैं। 2 मिनट ईमान लाने वालों को जन्नत का पता चल गया, दोज़ख का पता चल गया, जज़ा और सज़ा का पता चल गया, अज़ाब तबाहकुन का पता चल गया। कितने अफसोस की बात है, उम्र गुजारे बैठे हो, वक्त गुजारे बैठे हो, अब कब्र नजदीक है, मौत नजदीक है, अल्लाह की अदालत नजदीक है, परवरदिगार आलम की हुजूरी में पेश होना यकीन है और नजदीक है। आज तक जहन्नुम पे यकीन नहीं, जन्नत पे यकीन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाने वाले मजबूत, आसे लकड़ी का सांप बना हुआ देखकर एक मोजज़ा देखा, कितने मजबूत हो गए। तुमको काली कमली वाले ने लाखों मोजज़े दिखाए, कच्चे फिरते हो। उन्होंने सिर्फ एक मोजज़ा देखा, कलीमुल्लाह का। तुम हबीबुल्लाह की उम्मती हो, तुम काली कमली वाले की उम्मती हो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। लाखों मोजज़ात देख चुके, हजारों मोजज़ात सुन चुके, मगर आज तक काली कमली वाले के न बने। हर पैगंबर ने अपने अपने वक्त में लोगों की हिदायत का जरिया मुहैया किया। कुरान करीम पहले अंबिया की खबरें बातें इसीलिए बताता, देखो वो यूं बर्बाद हुए, वो यूं जलीलो खार हुए। किसी को कोई अज़ाब दिया गया, किसी को कोई अज़ाब दिया गया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, अल्लाह का नबी, बरगुज़ीदा बंदा, कौम को समझाते हैं, कौम को आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं, होशियार बेदार करते हैं, कौम मानती नहीं। कल्लबत कौम लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। मेरा नबी था, मेरे नबी को झुटलाया, मेरे पैगंबर की तकदीब की, बरादरी की बात मानी, खानदान की बात मानी, रस्मो रिवाज की बात मानी, मेरे नबी की ना मानी। इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। मेरे नबी ने मुझसे डराया, अल्लाह के अजाब से डराया। डर जाओ, बाद आ जाओ, तुम्हारा कोई खालिक और मालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुमसे हिसाब लेगा, जिंदगी का हिसाब लेगा, बदन का हिसाब लेगा, आंखों का हिसाब लेगा, दिलो दिमाग का हिसाब लेगा, करतूत का हिसाब लेगा, दिल का हिसाब लेगा। अल्लाह की जात को बसाया या गैरों को, अल्लाह पाक पूछेगा, तुमको मेरे नबी ने मना किया था, उअबुदुल्लाह, उस परवरदिगार की इबादत करो।
नजर न्याज उस परवरदिगार की दो, इबादत उसी की करो, सर उसी के सामने झुकाओ, रुकू उसी के सामने करो, ये माथा, ये पेशानी, ये जबीने न्याज उसके दरवाजे के सिवा कहीं ना झुकाओ। हर नबी की यही तालीम है, हर नबी का यही वाद है, हर नबी की यही नसीहत है, हर नबी का यही कारोबार है। उबुदुल्लाह, आओ एक अल्लाह के पुजारी बन जाओ। लूत अलैहिस्सलाम की कौम और खुद घरवाली भी शिर्क की लानत में गिरफ्तार थी। खुदा कहता है ये इतना बड़ा सर तेरा सरदार है जिसमें मैंने दिमाग रखा है, दो जान की समझ रखी है, अकल रखी है, दिमाग रखा है, ये तेरा सर मेरे दरवाजे के सिवा कहीं ना झुके। तू कहीं लाल कपड़े, लाल पीले कपड़ों के सामने झुकता है, ये फलाने पीर साहब का झंडा है, काली कमली वाली के सामने अल्लाह ने न झुकाया। तेरा कपड़ा क्या हकीकत रखता है? शर्म करो, अल्लाह पाक का दिया हुआ दिमाग और सर ढाई आने के कपड़े के सामने झुकता है, रब्बुल आलमीन के सामने नहीं झुकता। चारों तरफ से झंडे चल रहे हैं, चादरें उड़ा रखी है, बोझल उठाए फिरते हैं औरतों के। आज अगर सैयदना उमर फारूक जिंदा होते, खुदा जाने हमारी गर्दनें किस तरह से काटते। ईमानदारी से बताओ, जिस दरख्त के नीचे हुजूर अकरम सबकैद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हो, कई दिन ठहरे हो, वो दरख्त बरकत वाला है कि नहीं? जिस दरख्त के नीचे अली बैठे हो, अबू बकर बैठे हो, उमर बैठे हो, उस्मान, तलहा, जुबैर, साद, अबी वकास, 1400 सहाबा जिस दरख्त के नीचे बैठे हो, और जिस दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की, हुजूर ने बैत ली, पीरी मुरीदी पक्की हुई, तय हुई, और जिस पीरी मुरीदी पर, जिस बैत पर खुदा इतना राजी हुआ, फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, बैत करने वाले और बैत करने वालों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम सबसे राजी हो गया। जिस दरख्त के नीचे हुजूर ने बैत की, सहाबा ने बैत की, हुजूर ने बैत ली और कई दिन ठहरे, और जिस दरख्त के नीचे बैत करने वालों को अल्लाह पाक ने कुरान के जरिए जन्नती बना दिया। हजरत उमर का जमाना था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोग उस दरख्त की ताजीम करने लगे, उस दरख्त की लोग ताजीम करने लगे। और ऐसे दरख्त की अगर ताजीम कर भी ली जाए तो क्या हरज है, जहां शहनशाह कायनात का कयाम हुआ हो, जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन बैठे हो, सुलह हुदैबिया उस दरख्त के नीचे तय हुई। क्या कहना उस दरख्त का, जहां वली, नबी, रसूल, इमामुल अंबिया, अहले बैत, सहाबा, खुलफाए राशिदीन सारे जिस दरख्त के नीचे बैठे हो, उस दरख्त की अजमत का क्या कहना। लोग उसकी अजमत करने लगे, ताजीम करने लगे। फारूक को पता चल गया, खुद तशरीफ लाए और लोगों को बुलाकर उस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। उस पेड़ को जिसके नीचे हुजूर तशरीफ फरमा हुए थे, कई दिन क़याम रहा, उमर फारूक ने खड़े होकर जड़ से निकलवा दिया।
किसी ने कहा है उमर ये क्या कर रहे हो? फरमाया हाँ हाँ, जिस दरख्त के नीचे नबी बैठा उसकी ताजीम होगी और कुरान को ठोकरें लगेंगी। लोग यहां शिर्क शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने इस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। बैतुल्लाह को छोड़ देंगे, उसकी पूजा छोड़ देंगे, उसका सजदा छोड़ देंगे, यहां लोग सजदे शुरू कर देंगे, इसलिए मैं उमर इस दरख्त को नहीं छोड़ता। हालांकि उस जमाने में बिदअत करने वाला कोई करीब करीब था भी नहीं, शिरक करने वाला था ही कोई नहीं, लेकिन हजरत उमर ने शुभ जाहिर किया कि हमेशा तो सहाबा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैतुल्लाह से फिर जाएंगे, दरख्त की तरफ दिल लगा लेंगे, जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और यही वजह बनी, ये जो इस वक्त सऊदी अरब में बैतुल्लाह और मदीने पाक में जिन लोगों की हुकूमत है, इनसे पहले तुर्कियों के दौर में बड़े बड़े रोजे बने हुए थे सारे सहाबा के। हजरत हलीमा का रोजा अलग था, फातिमतुज़ ज़हरा का रोजा अलग था, हजरत उस्मान का रोजा अलग था, तलहा जुबैर का रोजा अलग था, बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे। मगर हालत वही थी, न कोई हरम नबवी में औरत ठहरती थी, बस या हलीमा के दरवाजे पे पड़ी है, या फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार पे पड़ी है, या हजरत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे पड़ी है, या हजरत खदीजा के दरवाजे। बैतुल्लाह में कोई नहीं, रोज़े रसूलुल्लाह पे कोई नहीं। आप कहते होंगे कि ऐसा कौन कमला था जो बैतुल्लाह को छोड़ करके वहां पड़े रहते थे? यहां तजर्बा नहीं तुम्हें? मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, नमाजी मर गए। चारों तरफ जो शिर्क होने लगा, वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार, ला तजाल कब्री असलाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। और आगे फरमाया, लाल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, फिटकार करे। क्यों? इसलिए इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। जानते सारे हैं, सारे मौलवियों को पता है, सारे पीरों को पता है कि अल्लाह की जात के सिवा सजदा, रुकू किसी को नहीं किया जा सकता।
اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، کمر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم
लूतुन अला तत्तकून। मेरे भाइयों, मेरी बिरादरियों, मेरे खानदान के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, किस प्यारे अंदाज से अल्लाह का नबी बुला रहा है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, अमीन बना करके भेजा गया हूं। अल्लाह ने अमानत मेरे सुपुर्द की है, तौहीद की अमानत। सुभान अल्लाह, तौहीद की अमानत मेरे सुपुर्द की है और मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। फत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से। नबी कहता है, रसूल कहता है, पैगंबर फरमाते हैं, डरो उस परवरदिगार से जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, जिसके कब्जे में पत्ता पत्ता है, जिसके कब्जे में कतरा कतरा है। डरो उस परवरदिगार से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरोगे, खुदा तुम्हारे सारे काम संवार देगा, सारे विचारों की बिगड़ी बना देगा। नबी खुदा का तालीम दे रहा है, तबलीग कर रहा है और कहता ओ लोगों, इस तबलीग की मैं तुमसे मजदूरी कुछ नहीं मांगता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, मैं मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा टका नहीं मांगता, मैं रोटी पानी नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नबी खड़ा है, बुला रहा है अपने भाइयों को, अजीजों को, बिरादरी को, खानदान को, आओ सारे मेरी बात सुनो। खुदावंद करीम ने जो ताजे नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइज जो किया वो पहुंचा रहे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बात तो क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। फरिश्ते आवाज देते, इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मर्ज बढ़ता चला गया, मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की, जो समझाया, जितना आगे खबरदार किया, उतने ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए, उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस जालिमों मेरे मेहमान है, बाबा बाबा, बेइज्जती नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा दीवारों पे चढ़ गए,
दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको बाहर। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं, लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे ओ लोगों जाने दो बाद आओ। फरमाया कौला या कौम, कौला या कौम, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती अतहरु लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ। कुर्बान जाऊं नबी पर, काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान ना तोड़ो, दरवाजा ना तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने के, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिन्नतें की, बड़ा बड़ा सरमायादारों की मिन्नतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। फरमाया जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हटे तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों शर्म करो, नबी को न मारो, अल्लाह के पैगंबर को ना मारो, खुदा के नुमाइंदे को ना मारो। लूत अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी ने रोया, रो दिया, उधर आंसू पड़े, उधर आवाज आई मकान के अंदर से, क़ालू या लूत, अंदर से आवाज आई, मकान से आवाज आई। जब अल्लाह के फरिश्तों ने जो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, जब उन्होंने देखा अल्लाह का नबी रो पड़ा है, और तुम लोग माने या ना माने, नबी का रोना फरिश्ते नहीं देख सकते। अंदर से आवाज आई, क़ालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, अल्लाह के नबी ए लूत अलैहिस्सलाम, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आदमी नहीं है, छोकरे नहीं है, हम लड़के नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। दरवाजे से हट जाओ, इन्हें अंदर आने दो। छोड़ दो दरवाजा। और आप ऐसा करें
अपने अहलो अयाल को साथ लें, बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ। हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी, नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला, जल्दी करो बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गजब आ गया, जलाल आ गया, अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, यूं मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि तू है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन ना करने वाली हमने तुझे बीच में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बादा आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि उन फरिश्तों ने उस जमीन को इस तरह से काट लिया, जमीन से जिस तरह नर्सरी वाले पेड़ को काट कर अलग कर लेते हैं। और यह मेरी बात नहीं, किसी फिरके और जमात। फरमाया क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुअमिनीन। लूत अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई, बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। पत्थर बरसते जाते थे और नोकदार पत्थर, पत्थरों के बने हुए तीर। और कुरान करीम कहता है कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फुला बदमाश को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, ये फलाने गुनहगार को लगे, ये फलाने को लगे। खड़े आसमान की तरफ बस्ती जा रही है, ऊपर बहुत दूर ले गए, आवाज आई पलट कर जमीन में फेंक। औरतें मर गई, बच्चे मर गए, सारी कौम बर्बाद हो गई। फरमाया वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। जब मैं अजाब दिया करता हूं, कौन मेरे अजाब को रोक सकता है? मेरे कहर को कोई नहीं रोक सकता, मेरे गजब को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं गजबनाक हो जाऊं फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। और मेरे बंदे, तेरा खैर खा मैं था, तेरा चाहने वाला मैं था, तू मेरा था मैं तेरा था, तू मेरा नहीं रहा मैं तेरा नहीं रहा। पैगंबर की तालीम की कदर न की, पैगंबर की नसीहत से कान न धरा, पैगंबर ने बतेरा बुलाया, बतेरा समझाया। अल्लाह के नबी ने हर मुमकिन कोशिश की बर्बादी से बच जाए, मेरे गजब से बच, अल्लाह के गजब से बच जाए, अल्लाह की तबाही से बच जाए। अगर उसके आज़ाब आ गया फिर टलेगा नहीं।
جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی. ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو. وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت. جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی. اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں. پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں. لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی جڑ مضبوط نہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا. بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی. پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی. چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے. تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا. بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں. پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی. پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی. لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا.
थे तो काफिर, पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को थड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा काम कर आए? कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं, काफिर। अबू लहब कहने लगा क्या बात है? उसने कहा 12-13 बरस हो गए रात दिन मारते मारते, घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। था तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था। उसने भी ये नहीं कहा छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए, वो कहने लगे सरदार क्या हुआ? कुरैश के चौधरी तुझे क्या हुआ? कहने लगा खैर नहीं। उसने कहा कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा इससे बढ़कर क्या आग लगेगी, मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। उन लगा अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आप उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अबू लहब कहने लगा ठीक है, मुझसे ज्यादा उसको किसी ने नहीं मारा, मेरे से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी ने दुख नहीं पहुंचाए, पर ऐ लोगों ये तो बताओ 40-50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, आज तक बताओ उस जुबान से जो बात निकली कभी पूरी न हुई हो। पहाड़ टल सकते हैं मगर मेरा यकीन है उस जुबान से जो बात निकली वह पूरी होगी। आज मेरा तेरा तो ये यकीन भी नहीं कि हुजूर का फरमान पक्का है, सच्चा है, हक है। और ये पुरानी किताबें हो गई, पुराना दीन हो गया, पुराना इस्लाम हो गया, अब तो कोई नया इस्लाम चाहिए। अब पुराने दीन पर क्या चलना है? औरत का यकीन नहीं, मर्द का यकीन नहीं, दुकानदार का यकीन नहीं, डॉक्टर का यकीन नहीं, अफसर का यकीन नहीं, छोटे बड़ों का यकीन नहीं, मर्द औरत का यकीन नहीं। अगर अबू लहब काफिर जितना भी यकीन हो जाए बात बनती है। तजारत के लिए चला, अबू लहब ने बेटे साथ लिए, शाम हो गई, रास्ते में कहने लगा ओ काफिले वालों करम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर, मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मक्के के नबी ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे रखी है, सारी रात इनकी हिफाजत करो, खैर नहीं। सारे सामान का टिब्बा बनाया, टिल्ला बनाया, ऊपर दोनों लड़कों को सुलाया, चारों तरफ लोगों को सुलाया, होशियार किया, बेदार किया। आवाज आई जंगल के शेर आजा, आज तेरी बारी है। इलाही मैं हाजिर हूं, मेरे नबी को दुख देने वाले को चीरो फाड़ के फेंक दो। शेर आया, चारों तरफ फिर रहा है, पहाड़ के सामान के, पता नहीं चलता वो कौन गुनाहगार है। मैं हैरान होता हूं कि शेर भी ये कोशिश करता है कि नाहक कोई न सिर जाए, नाहक कोई न फड़ जाए, हम मुझ पर यूं ही किसी का गुनाह नाहक खून न मेरे गले पड़ जाए। पूछता है इलाही जंगल का शेर हूं, बड़ा दिलेर हूं, तेरा बनाया हुआ जानवर हूं, तेरी मखलूक हूं, मुझे बता वो गुनाहगार है कौन सा, नाहक खून न बहा दिया जाए। जंगल का दरिंदा तो डर गया, मगर मैं और आप न डरे, हम न डरे, भाई का खून बहाते ना डरे, चचे का खून बहाते ना डरे, मामा का कत्ल करते हुए ना मरे, साले और बहनोई को कत्ल करते हुए कभी ना डरे। और फिर उम्मती का उम्मती जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है।
کم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا، ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو۔ کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا۔ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے۔ شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سون کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہے، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا، پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی ذلیل و خوار ہوئے، وہی تباہ و برباد ہوئے۔ آؤ ہم بھی پتہ کریں، نامعلوم کئے دن کی زندگی ہے، کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 8 دن باقی، کسی کے 2-4 سال باقی۔ آؤ بدلو، تبدیلی لاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو۔ خدا کی قسم محبوب دو عالم کی سنت کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی۔ میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، مزاج بدلو، حالات بدلو، طبیعت بدلو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔